talk throughout the day today. There are a couple of interactive exercises. You all know that these interventions are not just that we show a PPT and there is a facilitator just talking to you about things, but there will be involved exercises also that you will have to participate to get the maximum out of the session, right? And as we said to the earlier batches also, ये फेब का जो लास्ट सेशन होगा उसके बाद मार्च में वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ वन डे इम्पैक्ट प्रेजेंटेशंस जो हमने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने आप लोगों को एक टेम्पलेट दिया हुआ है, पीपीटी टेम्पलेट. इन केस यू डू नॉट हैव एन एक्सेस टू इट, मुझे आप मेल कर दीजिएगा, आई सेंड द टेम्पलेट टू यू अगेन. एंड यू हैव टू मेक दैट प्रेजेंटेशन. There will be 2-3 minutes that will be given to all of you because all 3 batches will be combined in that one day. We will be going through all the presentations, and towards the end of the day, usi din we will have a valedictory or felicitation ceremony for all of you. So that will complete the entire journey for us. So now that you have all your reflective notes either in your diary or in the workbook that has been given to you, refer to those notes, start making that presentation. क्योंकि वो डेट एकदम से आएगा तो आपके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, काम का भी होगा प्लस ये भी होगा. सो डोंट डू इट इन अ प्रेशर मोड, डू इट इन अ वे दैट यू आर एबल टू पुट ऑल योर थॉट्स, जो भी आपने सीखा है वो आप डाल पाए पीपीटी में, सो इट विल जस्टिफाई योर ओन लर्निंग. और कल को दैट पीपीटी कैन बिकम योर वन रेफरेंस पॉइंट फॉर द एंटायर जर्नी, राइट? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. इन केस यू डू नॉट हैव इट, यू लेट मी नो. इन केस यू नीड एनी हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कैसे स्ट्रक्चर करें प्रेजेंटेशन को, क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, दो वी हैव पुट दैट इन द टेम्पलेट. बट अगर उसके अराउंड एनी क्लैरिटी दैट यू नीड, प्लीज रीच आउट टू मी एनी टाइम, राइट? सो टुडे वी हैव Dinesh as our facilitator, the facilitator who is in the entire journey, who is one of the facilitator who is very much liked by all of you with the kind of energy that he brings to the room. अभी ऐसे क्या कितने हम थोड़े शांत है ना, अभी थोड़ी देर के बाद ऐसे शांति नहीं रहेगी रूम में. So Dinesh is one person who brings that energy, that enthusiasm, excitement, which is very important when we are doing a training program because it's kind of a closed environment that we are dealing in. So as we say for all our sessions, do not keep any credit to yourself. Please ask as many questions as you have. At least the questions with which you have come into this class. Do not go back with the same questions in your head. Get it clarified, get it resolved. We have an able facilitator to help you out, right? And keep implementing whatever learnings you are able to get through this journey. Please start implementing that also. Otherwise वो अगर theory में रहेगा ना तो you will forget, ठीक है? So the best way to retain the knowledge is start practicing over it, right? So on that note, we welcome you all to the 7th master class, and Dinesh, we welcome you on the behalf of Zydus, and over to you. Thank you so much. Good morning. Thank you so much for these kind words. It creates a little pressure also. But welcome everyone. Good to see all of you in this new year. So happy New Year to all. Oh yes, happy New Year. I think my last session with all of you was in November. December एक और session हुआ आपका I think on business strategies. कैसा हुआ? Good. All good. Yes. This was the session from the January, and we have another session also. So a lot of learning with me. I hope all of you bring the most of it. To start with the connected thread of Gen Z, चलो हम थोड़ा उसमें और reflection डालते हैं. That you don't have a choice. The age design is such that every 5 to 6 years, वो पूरा environment बदल जाता है. Now 2-3 questions. Let us analyze this and how do it works in our teams. 5 to 6 years back, were you using ChatGPT or AI? 5 years back. 26 चल रहा है, 19-20 की बात करते हैं. Were you using ChatGPT and AI? No. Were you thinking more that time? Thinking more. आप सोच रहे थे ना ज़्यादा. अब हम सोचते उतना ही है जितना उसको बताना है कि हमारा काम करते हैं. It can be ChatGPT or Copilot. Everything that comes in the revolution will have a positive point and a negative point. It is up to us what do we do with it. Easy so far? Yes. तो for example, स्मार्टफोन जब 2000 के आसपास आया था 2009, 2010,
11 it started to come, right? उसके पहले हमारे पास कौन सा फोन रहता था कंपनी का? नोकिया के कौन से फोन होते थे? कीपैड वाले। किसी के पास रेड कलर का होता था, किसी के पास येलो रहता था, किसी का फोन खुलता था, किसी के फोन में मोबाइल गेम्स होते थे। Now what is the design of a phone? Can someone explain the design of a phone? एक एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बताइए, फोन का डिजाइन क्या होता है? रेक्टेंगल, यस, स्लिम, लाइट वेट, फोल्डेबल, टच स्क्रीन एंड Everything is available. खत्म हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल। दिस इज द आउटर, ये इतना ही आउटर लुक है। सामने फुल स्क्रीन, पीछे कुछ तो 2-4 कैमरा, किसी के पास 2, किसी के पास 4, फोटो उतना ही आता है, फोटो वही आता है। ओके, every 5 to 6 years the generation changes, we also change in that generation. I repeat, बाहर कुछ तो चेंज चल रहा है हर एक 5-6 years के बाद, हम भी उसके अंदर ब्लेंड होके हम भी तो चेंज होते हैं। यस, so now when we are talking about Gen Z's messaging in the morning that I don't want to come on a Friday, हमें Wednesday से खांसना पड़ता था कि ठीक नहीं लग रहा। थर्सडे को भी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, फ्राइडे को ठीक लग ही नहीं रहा। आने के बाद भी एक दिन थोड़ा सा मंडे तक दिखाना पड़ता है, क्या बताओ आपको याद भी नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। सो हमें एक दिन के छुट्टी के लिए 4 दिन का प्रिपरेशन लगता था। जितने लोग हंस रहे हैं रिचा, यस, हाँ। एंड टुडे somebody is messaging on the group, hey, not coming, hey लिखते हैं। तो मुझे बहुत सारे HR के emails जो आते हैं, जो कॉन्फ्रेंस वाले, I'm sure रिचा आपको भी आते होंगे, कॉन्फ्रेंस वाले जो होते हैं ना, hey, attend this conference because it is very nice, 10,000 rupees। मतलब अरे थोड़ा अच्छे से तो बोलो, पैसा भी ले रहे हो, hey। तो मुझे वो hey के साथ वो hey हो गया, वो आया। So the point with Gen Z and the change of every 5 to 6 years, and how do we lead these team members, because in the next 5 years, 2030-31, there will be Gen Z plus। और भी सोचेंगे, मतलब वो शायद पूरे वीक का बताएंगे, ये हफ्ता मैं आऊंगा ही, आपको जो करना है कर। तो बोला यू हैव टू बी डेडिकेटेड, आप हो ना, यू हैव टू वर्क हार्ड, आप हो ना। सो द चेंज विल हैपन। डू यू नो व्हाट द चेंज इज? कभी हमने सोचा था कि चैट जीपीटी होगा, कोपायलट होगा, टेक्नोलॉजी होगा, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होगा, ईमेल्स कम हो सकते हैं। हाँ, ईमेल्स तो चलते रहेंगे रिमाइंडर 1 से लेके 3 तक, बट कम्युनिकेशन पैटर्न्स विल चेंज, थिंकिंग पैटर्न्स विल चेंज। I do a lot of MBA placement interviews also, and the students are not able to give answers sincerely जितना हम देते थे, जितना हम बोलते थे कि ये जॉब कितना important है मेरे लिए। So the change is there. We cannot hate the change. And why we're talking about all these things, because it is connected to our leading teams, and हमें उन team members के साथ कैसे काम करना है। Team members तो team members होते हैं। तो हम ना हमेशा बहुत conveniently, and I tell this at Zydus, I tell this at an HR company, I tell this an IT company, कोई और pharma company है, manufacturing, सब जगह बोलता हूँ, you don't have an option, I don't have an option. Are you getting it, guys? They are going to come, right? वो लोग बड़े हो रहे हैं। So 20 years back when we started our career, हम भी तो कुछ Gen W या Gen Y कुछ तो होंगे ना? Yes, हम जब बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे, 20 साल पहले हम भी तो आजकल के बच्चे थे। So our own first time managers, you remember your first time manager in your first career? They were also maybe discussing in a training room like this, or on their WhatsApp group तो नहीं था, on their tea group, कि यार आजकल के बच्चे सुनते नहीं, वही हम लोग ही है वो। So जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, और 20 साल के बाद जब मैं उनको ट्रेनिंग देने जाऊंगा, जब वो learn to lead में आएंगे, Richa will do that after 20 years also. When we do learn to lead for our Gen Zs, we'll talk about this, that हम Gen Z आपके बारे में 20 साल पहले बात करते, तब शायद वापस Gen A से स्टार्ट हो जाएगा। Are you getting it, guys? So the change will happen.
Are we ready for the change? Yes? Change होते रहेगा. Are we ready for that change and are we ready to bring about that change and have a very selfish goal, I'll tell you. Have a very selfish goal. मुझे मेरे टीम के साथ अच्छा काम करना है, मेरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा करना है. Have this goal, it's okay. If all of you think very nicely about your own department, धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच हो जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं? टीम वर्क को हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि टीम वर्क में वर्क नहीं हो रहा है, टीम हो रहा है. Everyone is forming the team, everyone is motivated. You're going for a Monday conference, morning discussion for goals, Friday lunch के लिए आप उनको लेके जा रहे हो. टीम हो रहा है. The work is not happening. Do you agree with me? Teams are ready, right? All your teams are ready. Yes. Is the work happening inside the team is the question. उसके अंदर क्या होना चाहिए या क्या अभी तक नहीं हो पाया है, हमें ये सवाल किसको पूछना है? खुद को ही पूछना है. इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है यार. So forget Gen Z's, forget A, Y, Z. मतलब मैं आज आपको सच एक और बताऊंगा कि जब हम छोटे थे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, MBA, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, हमें ये Gen Z, Gen Y, Gen A, हमको तो अभी भी पता नहीं कि हम कौन हैं. कितने सारे लोगों को पता है कि आप कौन से जेन में आते हो, कौन से जेन में आते हो, लेकिन ये कब पता चला? ये जेन जी है तो हमने पूछा हम कौन है वो तो बताओ. हमारे आधार कार्ड में नहीं लिखा है, हमको भी जेन जी, चलो जेन डब्ल्यू तो दे दो, कुछ तो दो. तब पता चला कि हम शायद द मिलेनियल्स हैं. लेकिन उससे आपको कुछ अभी फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम हैं तो हैं. So Gen Zs को ये बोल के हम सब लोग ने इतना पावर दे दिया है that they even if they want to work very hard they cannot now. क्योंकि अरे मैं तो Gen Z भूल गया था. मैं क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ? So Gen Zs are not wrong. We were also Gen Zs 20 years back. और वो जो आपका फर्स्ट मैनेजर था ना, वो भी Gen Z था 20 साल पहले. तो 40 साल पहले भी Gen Zs होते होंगे. नाम कुछ और था होगा. आइए सर, आइए. So no worries, please come. So you will always have this change. The change is inevitable. We are changing every second. Our mindset changes. We go back to old thoughts. We go to new thoughts. बहुत सारा सब कुछ होते रहेगा बॉस. बहुत कुछ होते रहेगा. And we cannot hate it. We cannot reject it. आपको accept करना है करो, नहीं करना है मत करो. That is the whole thinking of Gen Z. हम तो ऐसे ही हैं. So why do I talk about Gen Zs and leading teams as a concept today? That when we want to lead teams, आपके 90% लोग जो juniors होंगे, वो आपसे आने वाले Gen के ही होंगे ना. So hence we talk about this. In case if you're wondering कि ये Gen Z को support कर रहे हैं, मतलब मैं Gen Z को support नहीं कर रहा हूँ. Gen Z के साथ हम और आप कैसे join हो जाए, ये सोच रहा हूँ. बस उतना ही है. बाद में आपको काम कैसे करना है, उनके साथ काम करना है या नहीं करना है, things change. All good. Another fundamental for the day that we will talk about is, and please analyze this with your own personal experience and अपने किसी और के लिए भी आप देखना. My own fundamental for the last 7 months आपके साथ जब से हूँ मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि काम सबको आता है. Do you remember? काम सबको आता है. Everyone knows their job. Do you think anyone in this entire building यहाँ पे कोई है जिसको पता नहीं उसका काम क्या है? सबको अपना काम पता है. Yes. So we are talking about skill right now. Everyone knows their job. Yes. So the cook knows how to cook. The driver knows how to drive. The dancer knows how to dance. The scientist knows how to create something new. तो सबको अपना काम आता है. Is there a skill issue anywhere? Do you think we have a skill issue? What is a skill issue? आपने डांसर को बोल दिया खाना बनाओ, वो मैक्सिमम पिज्जा, ब्रेड, मैगी, नूडल्स वहां तक जा सकता है, वो तो नहीं कर पाएगा. हमने किसको बोला है? डांसर को. बट अगर आपने कुक, एक शेफ को बोला कि मुझे ना राजमा और चावल खाना है, बोला राजमा ये क्या होता है? डू यू थिंक दिस इज अलाउड फॉर अ शेफ? शेफ को तो आना चाहिए. सो उसको आता है. सो फंडामेंटली एवरीवन, फंडामेंटली बेस, सबको अपना काम आता है. स्किल इशू है कहीं पे भी? थोड़ा किसी का स्किल अच्छा है, थोड़ा किसी का स्किल खराब है, किसी
किसी का स्किल का क्वालिटी ऑफ रेंज थोड़ा कम ज्यादा है. सो इवन इन द क्रिकेट टीम, चलो वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स बट द स्किल इज सेम. द बैट्समैन का क्या जॉब है? बैटिंग, बॉल दिख रहा है, मारो, यहाँ मारो, वहां मारो, यहाँ मारो. बॉलर का क्या जॉब है? सामने कोई तो है, इसको आउट करो. कैसे आउट करो वो देखा जाएगा. पहला फोकस क्या है? आउट करो. Then somebody is a better bowler, better batsman, somebody is an average bowler, average batsman, but fundamentally skills सबका same होता है, steps same होते हैं. तो कोई और अच्छा कैसे हो जाता है रिजल्ट में? अगर सबका बेस फंडामेंटल सेम है तो कोई एक और अच्छा कैसे हो जाता है? बेस्ट कैसे हो जाता है? प्रैक्टिस. अच्छा, प्रैक्टिस हो गया. कैसे और अच्छा हो सकता है? लक एंड यस कंसिस्टेंसी एंड स्किल तो है ही. मैं पूछ रहा हूँ कि और अच्छा कैसे हो गया? सचिन के आसपास बहुत सारे बैट्समैन आना चाहते थे, आए, कोशिश किया, बट सचिन ने जिनका दो लोगों का नाम दिया वो तो जरूर आए. किसका नाम लिया था सचिन ने? विराट एंड रोहित, एंड दे बोथ केम. सो सचिन नोज उसके स्किल के लेवल पे कौन मेरा नेक्स्ट चैंपियन है. एंड देन ही वाज क्लियर, सही बोला, सही सिलेक्शन हुआ. बाकी और अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन वहां तक पहुंच पाए शायद नहीं. तो फिर क्या डिफरेंस रहेगी वहां तक नहीं पहुंचने और क्या? कुछ तो मिस हो गया ना. व्हाई डिड दे नॉट रीच देयर? कैपिटलाइज द स्किल. या फिर सचिन के जैसे और कौन थे अच्छे? कामली, बेस्ट फ्रेंड. व्हाट हैपेंड टू कामली? मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग. सो स्किल में गड़बड़ हुआ क्या कामली का? फोकस में गड़बड़ हुआ. अच्छा, सो फोकस तो क्रिकेट में आता है लेकिन डायरेक्ट क्रिकेट में तो नहीं आता ना. फोकस तो कहीं भी यूज हो सकता है. जैसे बैटिंग का जो बैट है वो हम इस रूम में तो यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम फोकस यूज कर सकते हैं. सो फोकस इज a compliment to that cricket line. Very nice, thank you. Anything else? जहाँ पे yes. Constant learning. अच्छा, ठीक है. Very nice. And is this common to us also? Very nice. और क्या है जो हमारे लिए भी कॉमन है, उनके लिए भी कॉमन है, लेकिन right now we all are sitting, we are not playing cricket. Priorities, goals, practice, improvisation, discipline, passion. Very nice. Connect, handling. People connect and handling. How do you talk to coach, captain, junior, seniors? Distraction, focus, discipline. और क्या है बताइए? Patience. Very nice. ये जितने भी आपने skills या qualities बताए, वो क्या हम लोग भी यूज कर सकते हैं? सचिन का कवर ड्राइव अभी हम लोग यूज कर सकते हैं. आप लोग चेयर पे बैठे हो, सचिन वाला वो कवर ड्राइव यूज कर सकते हैं अभी क्या? अभी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना. बैट नहीं है, बॉल नहीं है, पिच नहीं है, क्रिकेट नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बॉलर नहीं है, तो वो हम यूज नहीं कर पाते. लेकिन जितना बाकी का आपने पॉइंट्स बोला, फोकस, डिसिप्लिन, पैशन, कनेक्ट, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, ये हम सब लोग यूज कर सकते हैं. सो स्किल इज नॉट एन इशू गाइस. डू यू एग्री विद मी? टेल एवरीवन, स्किल इज नॉट एन इशू. टेल एवरीवन, बोलो आपके राइट में. स्किल इज नॉट द इशू. सब लोग अग्रीमेंट में आ चुके हैं. तो फिर इशू क्या है? ये जो भी बाकी खूबसूरत चीजें जो हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि आई एम वेरी व्हाई शुड वी हायर हिम, ये इसी के लिए तो रुका था. सो आई एम अ वेरी डेडिकेटेड वर्किंग प्रोफेशनल. आई एम अ फास्ट लर्नर. और बोलो आई गुड कम्युनिकेटर. वेरी नाइस. और बोलो I'm very hard working. क्या बोलूं, मैं चल के आया पूरा, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ. और क्या है बोलो? Determined. So ये सारे खूबसूरत चीजें स्किल से रिलेटेड नहीं है, but when used it will help the skill. मतलब स्किल है इतना, ये मुझे काम करना है, अगर मैं फोकस डालता हूँ, वेरी नाइस. डिसिप्लिन रहता हूँ, वेरी नाइस. I talk to people nicely, very good. I show up on time. Please put on silent. I show up on time. Very good. तो मैं जितने भी अच्छे कॉम्प्लीमेंटिंग चीजें आपने जो बताई है वो सिर्फ जाइडस के लिए एप्लीकेबल है या कहीं और भी एप्लीकेबल है? Is it applicable only for Zydus?
Is it applicable for other countries, other companies, other profiles? Is it also applicable for you in another company as well? So these are common qualities that are applicable for us forever. तो एक इंसान जो है यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन और कहाँ दिखेगा? अगर हम में से कोई डिसिप्लिन है बहुत, तो ये डिसिप्लिन ट्रेनिंग रूम में तो दिखेगा कि आप टाइम पे आते हो, सेशन में ध्यान देते हो, नोट्स बनाते हो, ये आपका डिसिप्लिन है। ये आपका डिसिप्लिन वाला जो क्वालिटी है वो और कहाँ पे दिखेगा? प्रोग्रेस में दिखेगा। और कहाँ पे दिखेगा? ये रूम के बाहर कहाँ कहाँ दिखेगा? इवेंट बताइए, इवेंट बिहेवियर में कहाँ पे दिखेगा? इवेंट बताओ। ड्राइविंग करते डिसिप्लिन दिख सकता है, वेरी नाइस। और क्या है? पर्सनालिटी में दिख जाता है, ओके वेरी नाइस। आपको कहीं पे तो शादी में जाना है, वहां पे भी आप टाइम पे पहुंचोगे। आपको शॉपिंग के लिए जाना है और आपने बोला कि 30 मिनट्स में शॉपिंग करना है 5000 के बजट में, वहां पे भी वो दिखेगा। डिसिप्लिन चाहिए शॉपिंग में? नहीं चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए शॉपिंग में? क्यों चाहिए? क्योंकि एक जीरो कभी भी बढ़ सकता है। क्योंकि सब कुछ इतना एक्साइटिंग है। भाई टू गेट वन, एवरीथिंग इज so exciting. And I think I've told you about how a DMart or any other company works. Have we discussed this? Buy two get one free and all हमने बात किया है कभी इसके बारे में? Yes? Buy today pay later. Stress बिल्कुल मत लेना। EMI as a concept is very beautiful and very risky also. People are taking EMIs for EMIs. Yes? So, coming back to discipline, और फोकस और हार्ड वर्क, ये सब कुछ हमें बहुत जगह पे हेल्प हो सकता है। इससे हमारा एक क्रेडिबिलिटी भी बनता है, इमेज बनता है। इमेज बनता है कि नहीं? यस। वो इमेज को कहाँ पे यूज हो सकता है? मतलब ऑफिस में यूज हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है और क्लाइंट के पास जाना है, तो किसको भेजेंगे हम? जिसका इमेज अच्छा है, जिसपे हमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग। यस। तो अगर आपका इमेज ऐसा है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, पैसे को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, पीपल मैनेजमेंट को लेके, टूल्स को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके, फॉर्मूलाज को लेके आपके ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं, तो आपका एक इमेज बन जाता है। करेक्ट? वही ट्रस्ट आपके आसपास के लोग या फिर ऑफिस के बाहर के लोग भी आपके बारे में वैसे ही बात करते हैं। अगेन अ गुड पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी की शादी है, यस, एंड यू आर द ट्रस्टेड पर्सन, तो आपको कैश दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये गोल्ड संभालो। बट अगर ट्रस्ट नहीं है, तो अब क्या वो गोल्ड संभालने के लिए आप उस बंदे को दोगे? क्या उसको कैश वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे? जो गिफ्ट आता है वो सोचते हैं ना, अब ये किसको दे, किसको देंगे आप गिफ्ट वाला जो पूरा बैग होता है, वो किसको देंगे? ट्रस्टवर्दी। और ट्रस्ट कहाँ से क्रिएट होता है? ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा उस बंदे के साथ कनेक्शन कैसा रहा है। क्योंकि ट्रस्ट जो है वो स्लोली क्रिएट होता है। स्लोली क्रिएट होता है, ऐसा रैंडमली ट्रस्ट बना दो मजा आ गया, ऐसा नहीं है ना। स्लोली क्रिएट होता है। सो दीज क्वालिटीज हेल्प योर स्किल टू मेक योर जॉब बेटर। आप समझ में आ गया? एंड नॉट ऑल क्वालिटीज एवरी डे। किसी दिन फोकस काम में आएगा, किसी दिन पेशेंस काम में आएगा। सब कुछ हर टाइम पे काम में नहीं आएगा। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो, यस, अभी आपका क्या है? फोकस इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का काम हो गया, आप आ गए। आप अंदर आ गए मतलब डिसिप्लिन टिक मार। नेक्स्ट, अभी फोकस चाहिए। शाम को 6 बजे तक 5 बजे तक क्या चाहिए? फोकस। गुड। पेशेंस भी चाहिए, सुनना किसी को। करेक्ट? पेशेंस हियर, क्या बोलते जा रहा है लेकिन इसका करूँ क्या? ऐसा लगता है आपको कभी कभी? तो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो फोकस प्लस पेशेंस प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेटेबिलिटी, थिंकिंग। आपका थिंकिंग चाहिए कि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये मैं अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ कैसे यूज करके मर्ज करूं। इज दैट एनालिसिस इंपॉर्टेंट? कैन आई टीच यू दैट एनालिसिस? ये तो आपका है ना, कि मतलब मैंने आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया जिसपे हमने फोकस, डिसिप्लिन, पैशन, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं,
वो आप नॉलेज कैसे यूज करो आपके पर्सनल लाइफ में, वो आपको यूज करना है ना. सो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो नाउ, एंड यू नीड टू हैव अ गुड मेमोरी ऑल्सो. मेमोरी का इशू किसका है? एनीवन विद अ मेमोरी इशू कि याद नहीं आ रहा है? होता है किसी के साथ? यस, होता है. बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज ऑफ सेविंग एवरीथिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, हमें याद ही नहीं रहता है कि क्या क्या बोला था उसने. रुको मैं फोटो देख के बताता हूँ. नाम भी भूल जाते हैं. हाँ, आपको कहीं तो देखा है, मतलब मैंने भी आपको देखा है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मुझे भी आपका नाम नहीं याद आ रहा है और आपको भी याद नहीं आ रहा है, तो बुरा मत मानना. होता है, हो सकता है. यस. So all the skills are common on our daily job. The complementing qualities make our job better. Easy है? तो क्या क्या complementing qualities है? हमने focus से लेके discipline से लेके इतने सारे list बना लिए. Everything is required to make our job better. Now there is one thing very clear. जो visible है, जो दिखता है, वो क्या है? Quality है या skill है? जो दिखता है वो क्या है? वो स्किल है या क्वालिटी है? So Sachin Tendulkar is hitting Glenn McGrath for a 6. वो दिख रहा है या इनविजिबल है? विजिबल है और इनविजिबल है? विजिबल है. लेकिन वो शॉट को इतना अच्छा खेलने के लिए माइंडसेट जो है, डर नहीं लग रहा है तो फेथ है, फोकस है. फोकस चाहिए था वो शॉट के लिए, बिकॉज एक सेकंड भी अगर इधर उधर हो जाए तो वो बॉल डायरेक्टली मुंह पे लगेगा या तो. सो फोकस चाहिए था ना. तो ऐसे किसी को दिख रहा है इसके आंख में फोकस है, ये 6 किलो फोकस दिख रहा है. फोकस दिख रहा है क्या? कैन यू काउंट फोकस? सो इफ यू कैन नॉट काउंट इट, इट इज इनविजिबल. करेक्ट? फॉर्मूला इज ओके. तो सचिन तेंदुलकर is hitting a very nice 6 that you can see, but वो 6 smooth दिख रहा है ना आपको. वाह, सचिन तेंदुलकर 6. उसके पीछे क्या क्या था? इनविजिबल चीजें क्या क्या है बताइए? इनविजिबल चीजें कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस तो वो दिख रहा है. कंसिस्टेंसी मतलब वो रोज जाने के सोच रहा है, फोकस है, कॉन्फिडेंस है, टाइमिंग है. सो मेनी इनविजिबल थिंग्स, इनविजिबल क्वालिटीज to make the skill visible. Combination होना चाहिए. Yes. तो ये फोकस किसी का खराब हो सकता है. कोई बैट्समैन है जिसका फोकस खराब हो गया, कितने सारे. कोई एक्टर्स है जिसका फोकस खराब हो गया, कितने सारे. कोई एक्टर है जो अभी भी डिसिप्लिन्ड है. एनीवन? मिस्टर बच्चन, till date the most disciplined actor. Can someone call him lucky? Now is he lucky? Do you think he's lucky at the age of 82 and a half? Working every day for so many years, now he feels, I think I'm lucky. उनको पूछो ना, वो बोलेंगे पता नहीं, मैं तो बहुत lucky हूँ. उन्होंने कभी claim नहीं किया होगा. You ask Shah Rukh Khan, does he work very nicely? At the age of 59, 60, 61 as well? Does he look 60? Absolutely not. I mean, champ, कितना अच्छा है, right? Sachin Tendulkar at the age of 52, can he come and play T20 World Cup? Skill है, passion है, खेल सकते हैं. So the point is there is a skill which is visible because of execution and action. तो बहुत सारे लोगों का skill कहाँ पे होता है बताओ? छुपा के रखते हैं. निकाल देते हैं skill को, छुपा के रखते हैं. क्यों छुपा के रखते हैं? पूछेगा तो काम मिलेगा. पूछेगा तो इससे अच्छा. So hence a lot of goal setting, vision setting, planning, acceptance, understanding, goals, team, execution, organization vision, organization goal, ये सब कुछ जरूरी है समझना. किसको समझना है? हमको समझना. And hence we are here today to learn leading teams. कहाँ चले गए? We are here to learn leading teams. Is that okay, guys? With me, everyone? Yes. So good topic, good context so far. Okay, everyone.
Can one person from each table get up and take books? One person from each team. सबके लिए books ले लीजिए. Each table, team नहीं table. सबके लिए एक book ले लीजिए please. अच्छा, ये off है. I hope everyone has a copy. I hope everyone has one copy at least.